Hello friends, my name is Mohit Sawant. As you all know, GS paper UPSC 2025 mains just have been concluded, and we have the GS paper 1 with us, and we will be discussing in this particular video, that is Indian society part from the GS paper 1. Okay, evidently this paper used to be considered as a low hanging fruit when it comes to society. Okay, whatever 6 to 8 questions are there, and 80 to 85 marks, almost one third weightage you have with respect to this particular paper. But in the year of 2025 there is some change in this particular pattern, we can say. What is that change that we'll be seeing into this lecture? And if you are preparing for 2026 or beyond, then this video is for very important for you, that you should gain the static knowledge or you should gain the current affairs. Many a student got confused with this that we have to focus too much on the current affairs when it comes to the societal part, and you can skip the static part. So ये सारे questions आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर करेंगे. So first, as you all know that UPSC don't expect what you know in particularly mains, but how you can apply what you know about the society. Okay, तो application बहुत important हो जाता है from the society perspective, क्योंकि data is scattered, you have a open ended question, then how to deal with that question, that makes a difference. Okay, so how to club the static data, that also we'll be seeing into today's session. So first of all questions देखते हैं कौन कौन से questions है. तो there are, we can say कि 5 to 6 questions are there. Okay, जैसे कि ये question number 8, I have kept the number as it is, so it will be convenient for you to get the question as easy as possible. 8, question number 10, these two are 10 markers for 150 words. Then question number 15, 18, and then 19 and 20. So at least 5 and 2, 7 questions are there. But there is a dispute. Some people will say overlapping यहाँ पे है, some people will say कि we have only 6 questions in the society part. तो definitely for sure इस साल society के at least 2 questions drop हुए हैं from the previous trend. Okay, 2023 2024 में ये trend था कि at least we have 7 to 8 questions from society, but 2 questions are reduced in this particular paper. ये हमें मार्क करना होगा. तो at least 20 marks are less from this year society part. Okay, तो ये याद रखना है. दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ये वाला जो क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोसाइटी में लेंगे नहीं लेंगे. सो देर इज अ डिस्प्यूट. सो बट आई हैव फॉर अ सेफर साइड आई हैव कंसिडर्ड इट इनटू द सोसाइटी पार्ट. ओके, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी पार्ट. सो हाउ वी विल बी डीलिंग विद दीज क्वेश्चंस, वन टू वन डिस्कस करते हैं. हाउ डू स्मार्ट सिटी, सी दिस स्मार्ट सिटी क्वेश्चन इज क्वाइट रिपीटेटिव वन every year or now and then, as this is a contemporary pressing issue when it comes to your society या फिर urbanization phenomena. तो इसीलिए स्मार्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन आपको पूछना लाजमी था. एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द PYQ ऑल्सो, विल सी दैट ऑल्सो. तो स्मार्ट सिटी एड्रेसेस द इशूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी. What is this urban poverty and distributive justice? This distributive justice is just one word given just to confuse you, I think. You can deal with the urban poverty, that is more than enough for us. Okay, so you have to interlink this smart city with urban poverty, and how this smart city will approach या फिर will help to address this urban poverty wala issue. This was a very straightforward question and very easy question. If you have prepared the smart city wala concept from the static notes, then you could have got the answer. As you all know कि 2015 में smart city initiative शुरू हुआ था, and in the year of 2025 now we are celebrating 10 years of smart city. So this was in our list, hit list हम लोग कह सकते हैं. ये question हमारे hit list में already था कि this question will be there. Okay, regarding smart city. Okay, so it was on an expected line. Then do you think that globalization result only in an aggressive consumer culture? See, globalization linked with consumer culture, this you have to address. Globalization again one more popular theme with respect to society वाला part. हर साल या फिर every alternate year there is globalization वाला discussion. Sometime they will link globalization with homogenization of culture. आपने देखा होगा question PYQ में. I'll tell you the PYQ as well. Okay, so this was on the again on the expected line. There is no surprising element we have. But if you see question number 15 कि how artificial intelligence can and drones can be effectively used along with GIS and RS technologies, okay, radio sensing technologies,
इन लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में डिस्कशन है, अगेन अर्बनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग हाउ यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी विद द टाउन प्लानिंग, दिस वाज द डिस्कशन हियर। दिस इज अ क्वाइट सरप्राइजिंग एलिमेंट व्हेन इट कम्स टू सोसाइटल पार्ट, क्योंकि अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन सोसाइटी में नहीं होता है, लेकिन सिंस द एडवेंट ऑफ एआई ऑब्वियसली यू कैन सी मोर एंड मोर क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम द एआई वाला एस्पेक्ट। बट कैन यू नोटिस जो हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चंस अभी तक डिस्कस किए, यहाँ पे डिस्कशन अर्बन एरिया या फिर अर्बन लोकेलिटी या फिर अर्बन सोसाइटी के बारे में ही है। ओके अभी तक हम लोगों ने रूरल पे डिस्कशन नहीं किया है। विल सी दैट ट्रेंड इफ नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इफ वी सी दिस ट्रेंड्स इज कंटिन्यूइंग और नॉट। ओके सी दिस क्वेश्चन, डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री गिवन देयर इंक्रीज्ड हेल्थ कंसर्न। फास्ट फूड इंडस्ट्री के बारे में, हेल्थ कंसर्न के बारे में डिस्कशन किया है इन मॉडर्न सोसाइटी। तो ऑब्वियसली सी फास्ट फूड इंडस्ट्री कहाँ ग्रो होगी, अर्बन एरियाज में ही या फिर सेमी अर्बन टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में ही फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लिंकेजेस विद द हेल्थ कंसर्न, इलिस्ट्रेट आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली क्वाइट इजी राइट। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री के बारे में क्यों पूछा होगा, तो इफ यू नो दैट 10% ऑफ ऑलमोस्ट इंडिया जीडीपी कम फ्रॉम दिस फास्ट फूड इंडस्ट्री एंड दिस फास्ट फूड इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन अ ह्यूज पेस विद द इंडियंस। ओके फिर दूसरी चीज़ है हेल्थ कंसर्न। तो हेल्थ कंसर्न के बारे में हमें पता है कि वी आर नोन टू बी द व्हाट वी कैन से डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड देयरफॉर फास्ट फूड इंडस्ट्री के हेल्थ कंसर्न बहुत ज़्यादा है, अगेन फ्रॉम द अर्बन एरिया या फिर फ्रॉम द अर्बन सोसाइटी। ओके तो आउट ऑफ 6 to 7 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस आर देयर विच डील्स विद द अर्बन सोसाइटी। ओके ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन अगेन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ with emphasis on the environmental protection could come in the conflict with poor people's need in a country like India. Okay, so what is happening here कि ये क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि environmental protections के जो भी नॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी आर प्रमोटिंग सम ऑर्गेनिक फूड, ओके या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। then but these organic product price of this organic product is too high which is not affordable by the poor people, okay and therefore the poor people needs will hamper in this। okay so ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बारे में डिस्कशन हमें करना है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं कि गांधी जी ने, हमने देखा था कि he has promoted खादी इंडस्ट्री राइट। ओके बट कैन यू इमेजिन दैट खादी इज cheaper to buy? no, obviously answer is not। सिंथेटिक फाइबर से खादी थोड़ा कॉस्टली होता है। कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप अगर लेने जाओगे तो वो कोई भी सिंथेटिक या फिर हाइब्रिड प्रोडक्ट से थोड़ा कॉस्टली ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि पुअर पीपल्स नीड विल नॉट बी गेट फुलफिल्ड थ्रू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके तो इसीलिए सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढना ज़रूरी होगा राइट। यही इस क्वेश्चन का डिस्कशन है। ओके and then and again this is again poor people's need, so we can relate this to urban areas only। okay then does tribal development, हाँ ये एक क्वेश्चन है जो रूरल लोकेलिटी या फिर रूरल सोसाइटी से डील करता है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड 2 axes दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, गिव योर ओपिनियन। इसका मतलब सिंपल ये है कि ट्राइबल जो पीपल है, ओके ट्राइबल इंडियन, तो उनमें डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, अगेन दिस इज़ अ हिस्टोरिकल इशू। ये ऐसा नहीं है ये बहुत नया इशू है या फिर अभी पॉपअप हुआ है इशू। तो डिस्प्लेसमेंट, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट अभी आपने अगर महाराष्ट्र में सुना होगा तो शक्तिपीठ महामार्ग है या फिर समृद्धि महामार्ग है। ओके तो इसके लिए जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होती है तो हर साल कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होती रहती है और उनका रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके तो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन अगेन इट इज़ अ वेरी ओल्ड इशू एंड वी हैव दिस कंटेंट इन आर स्टैटिक नोट्स। ओके सो ये भी डील करना क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। Obviously, see, we'll be not discussing all the detailed answers in this question. I'll be providing it to you in my telegram channels। okay तो वो बाद में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन की डिमांड डिस्कस कर रहे हैं। ओके नाउ इफ यू सी, सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड इफ यू सी द डिमांड एंड
linkages with the syllabus. These are the demands of the question. Okay, silent features of Indian society: poverty, globalization, urbanization, social empowerment. Okay, social empowerment और silent features में tribal वाला questions हम लोग डाल सकते हैं, right? तो इसमें से आपको सारे questions थे. There are definitely we can say popular theme which UPSC has skipped this time, है ना. कौन कौन सी पॉपुलर थीम है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं रोल ऑफ वुमन, ये भी मैंने आपको आगे दिया ही है कि वी वर एक्सपेक्टिंग दैट रोल ऑफ वुमन 2023 में 2024 में जो पॉपअप हुआ था. इस साल यूपीएससी ने रोल ऑफ वुमन पे कुछ नहीं पूछा है. देन रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म, ये कुछ पॉपुलर थीम्स है, ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे पूछा है. बट ऑब्वियसली इस साल भी यूपीएससी ने उस पर कुछ नहीं डिस्कशन किया है. ओके, एंड इफ यू सी द linkages with the syllabus, then urban poverty and smart city वाला जो question है, salient feature of Indian society, urban poverty, distributive justice. So I have just given the list कि आप syllabus के कौन से topic से उन questions को link कर सकते हो, and this is the sample I have given. You can refer these samples, and if you see the nature of the questions, then your questions are basically what conceptual questions and applied question. Okay, all you require is to link the theory and practices. Obviously they are interdisciplinary, यानी सोसाइटी के साथ टेक्नोलॉजी का लिंकेजेस हैं, देन गवर्नेंस का लिंकेजेस हैं, इकोनॉमी का लिंकेजेस हैं, अगर हेल्थ इशू पूछे हैं, फास्ट फूड इंडस्ट्री पूछी है तो इकोनॉमी का लिंकेजेस हैं, करंट लिंकेजेस ऑल्सो देयर, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में, एआई ड्रोन्स के बारे में, तो करंट लिंकेजेस आर देयर. ओके, एंड अदर ओपिनियन बेस्ड. सी, यही कैटेगरीज आपकी रहेंगी सारे क्वेश्चन में हर साल. ओके, व्हाई आई एम गिविंग यू, दिस इज नॉट फॉर दिस ईयर ओनली 2025, but this is for the next few years. So if you are preparing for society wala perspective, try to focus first on the conceptual and applied, interdisciplinary, current linkages must be there, and your opinion with respect to see globalization, tribal, urbanization, ये कुछ topics हैं जिसपे आपको opinion based question frame हो सकते हैं. We call them as a open ended question. ओके, सो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन फॉर्म होना लाजमी है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, and about the difficulty level, if you have to go about the difficulty level, I would say overall question is moderate to analytical. It is not like कि बहुत ज़्यादा difficult है या फिर बहुत ज़्यादा easy भी है, क्योंकि ये अगर AI ड्रोन का क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ट्रिकी टू हैंडल है, तो अगर ये आप कंसिडर कर रहे हो तो इट हैज़ अ हाई डिफिकल्टी लेवल, बट अदर क्वेश्चंस आर क्वाइट मॉडरेट. ओके, लेकिन फास्ट फूड इंडस्ट्री के बारे में ये डिस्कशन हो सकता है कि व्हाई आई एम सेइंग दिस इज अ हाई डिफिकल्टी लेवल, बिकॉज it is quite possible that while writing this fast food wala discussion, student will only focus on the health wala aspect, or they will focus on the economy wala aspect, and definitely they'll skip the society wala aspect which needs to be integrated. Okay, because this is a society wala question. Okay, so ये important होता है society के questions में कि you will have to give the social implication. फास्ट फूड इंडस्ट्री के सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है वो देना बहुत ज़रूरी होगा. हेल्थ अगर डिटोरिएट हो रही है सोसाइटी में, तो हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑन दी सोसाइटी क्या हो रही है. जैसे कि इफ आई हैव टू टेक द एग्जांपल कि इफ द हेल्थ ऑफ द यंग पॉपुलेशन इज रिड्यूसिंग, देन ऑब्वियसली यूर ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ह्यूमन कैपिटल. ओके, सो ये एक प्रॉब्लम हो रहा है. ये आपको सोसाइटल एस्पेक्ट से या फिर सोसाइटल लेवल पे क्वेश्चन पॉइंटर्स डिस्कस करना ज़रूरी है, जो थोड़ा लैक हो सकता है, इसीलिए इसमें मार्क्स कम हो सकते हैं और इसीलिए मैंने इसे हाई कैटेगरी में रखा है. ओके, सो देयरफॉर पेपर मॉडरेट टू एनालिटिकल, इजी टू हैंडल वी कैन से. ओके, और अगर पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करें तो यूपीएससी ने अगर आप अर्बन पावर्टी के बारे में डिस्कशन करोगे तो अर्बन पावर्टी में सिमिलरली यूपीएससी ने 2014 या फिर 2017 में पर्टिकुलरली टू अर्बन पावर्टी दे हैव आस्क्ड अस. ओके, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज क्वाइट इजी क्वेश्चन. अर्बन पावर्टी, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस पे उन्होंने पूछा है ऑलरेडी हमें. ग्लोबलाइजेशन की अगर बात की जाए तो थीम रिपीट हुई है ग्लोबलाइजेशन की 2013 में, 2016-20 में. ओके, एंड ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, वैल्यूज, वुमन, यूथ. ओके, एंड नाउ दे हैव आस्क्ड अस अबाउट द व्हाट ग्लोबलाइजेशन विद द कंज्यूमर कल्चर. मैं आगे वो लिंकेजेस भी आपके साथ शेयर करूंगा. ओके, देन एआई एंड अर्बन प्लानिंग, दिस वाज अ न्यू डायमेंशन. डायरेक्टली यूपीएससी ने पीवाईक्यू में इस डायमेंशन के बारे में अभी तक नहीं पूछा है, इफ वी कंसीडर इट इन द सोसाइटी वाला पार्ट, है ना, राइट. तो ये डायरेक्टली नहीं पूछा है, बट टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी ये एक ट्रेंड ऑलरेडी है. जैसे कि सोशल मीडिया पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है यूपीएससी ने.
आईटी और डिजिटल डिवाइड पे क्वेश्चन पूछ लिया है। सो ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है, लेकिन एआई के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं था। देन ट्राइब्स, ट्राइब्स तो एक पॉपुलर थीम ही है, रिपीटेड फोकस यूपीएससी पुटिंग इन द ट्राइब वाला पार्ट 2013, 16, 18। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ट्राइब देर आर टू प्रेसिंग इश्यूज ओनली, दैट इज रिहेबिलिटेशन। सी हिस्टोरिकल उनके डिस्प्यूट्स में नहीं जाना है, या फिर हिस्टोरिकल जो ट्राइब्स के प्रॉब्लम्स है उनमें नहीं जाना है अभी। इफ यू कैन से इन अ रिसेंट पास्ट, because of the developmental project, displacement is the important issue and rehabilitation is the important issue when it comes to tribes. Okay, तो vulnerability, tribal integration, इस पे ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। ओके, देन फास्ट फूड एंड हेल्थ, तो ये वेस्टर्नाइजेशन एंड हेल्थ के बारे में यूपीएससी ने 2013 में पूछा था, एंड 21 में चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स के बारे में पूछा था। सो फ्रॉम दिस इफ यू हैव व्हाट स्टडीड या फिर प्रैक्टिस दीज 2 PYQ, डेफिनेटली उसका जो पूरा कंटेंट है वो पूरा कंटेंट आप यहाँ पे फूड, फास्ट फूड और हेल्थ में पुट कर सकते थे। ओके राइट, तो क्वेश्चंस अगेन ऑन द प्रेडिक्टेबल लाइन, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया है कि यूपीएससी रिपीट्स द कोर थीम्स बट चेंजेस द फ्रेमिंग और कंटेक्स्ट, सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी इजी पार्ट, या फिर जो मैंने पहले वर्ड यूज किया लो हैंगिंग फ्रूट। इफ आई हैव टू अगेन एम्फोसाइज माय पॉइंट हियर कि पीवाईक्यू के साथ लिंकेजेस कैसी है, तो यू कैन सी 2015 और 2013 में ये स्मार्ट सिटीज एंड डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम, स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट सिटीज और सोशल प्रॉब्लम क्लब करके ये 2025 में क्वेश्चन फ्रेम किया है। हाउ डज स्मार्ट सिटी एड्रेसेस द इशू ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, देन अगेन ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि 2018 में ग्लोबलाइजेशन प्रमोट द कल्चरल होमोजेनाइजेशन ये पूछा था, एंड ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द कल्चरल डाइवर्सिटी ये पूछा था 2016 में, and now they have asked us what globalization and consumer culture. Okay, so again on the similar line they have asked this question. See, this is the proof I am giving you so that it will be easy for you, or it will be a relaxing या फिर it will be a solace for you कि okay sir repeat हो रहा है, that is okay. So the PYQ यानी आपको क्या करना है, the takeaway here is my friend, you have to do the PYQ at any cost. Okay, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको PYQ एनालिसिस करना है, या फिर एटलीस्ट PYQ स्ट्रक्चरिंग तो करना ही है हमें, इवन इफ यू कुड नॉट राइट द एंटायर PYQs ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम और टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट एटलीस्ट यू हैव टू राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ PYQ। ओके राइट, तो ये शिफ्ट के बारे में अगर बात की जाए, ट्रेंड्स के बारे में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ऑलरेडी शेयर किया है कि 23-24 में कास्ट, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, वुमन इशू, ये पॉपुलर इश्यूज थे जो 2 साल 3 साल रिपीट हुए थे, लेकिन इस साल थोड़ा शिफ्ट है। अर्बन चैलेंजेस, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल चेंजेस, ट्राइब्स के बारे में क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये एक शिफ्ट आपको याद रखनी है इफ़ यू आर गोइंग फॉर 2026। ओके, कि शायद ये एरिया थोड़ा हाईलाइटेड एरिया है, यूपीएससी विल स्टे हियर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और एटलीस्ट टिल 2026, जैसे यहाँ पे ट्रेंड है कि यूपीएससी स्टेड फॉर 2 ईयर्स ऑन कास्ट, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म। तो बस ये ट्रेंड आपको याद रखना है और इसके हिसाब से इंडियन सोसाइटी का सिलेबस आपको देख लेना है, और या फिर वो स्टैटिक पार्ट आपको प्रिपेयर करना है। शिफ्ट, डायनामिक शिफ्ट हमें देखने को मिल रही है। हायर वेटेज टू अर्बन इश्यूज और टेक्नोलॉजी, ये मैंने बता दिया आपको। एम्फोसाइज ऑन हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड कंज्यूमर कल्चर। ओके, तो ये शिफ्ट तो डेफिनेटली यहाँ पे है। तो आपको प्रिपरेशन करते वक्त क्या करना जरूरी है, तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डिमांड, ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेट इट विथ करंट अफेयर्स, देन बैलेंसेस थियरी विथ प्रैक्टिस। ओके, देन इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्वेश्चन का आपको मल्टी डायमेंशनल नेचर याद होना चाहिए, इसीलिए आपको कुछ अगर सोसाइटी के रेडीमेड फ्रेमवर्क होंगे तो वो फ्रेमवर्क डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं लेक्चर्स में भी मेरे एक रेडीमेड फ्रेमवर्क एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कि आपको सोशल इंस्टीट्यूट, ओके, फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो आप। व्हाट इज सोशल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क? व्हाट एवर सोशल इंस्टीट्यूट्स वी हैव, that
पॉइंटर फॉर एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन यू कैन राइट इन योर आंसर, जैसे कि फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूट हो गया, फिर पॉलिटी एक सोशल इंस्टीट्यूट हो गया, इकोनॉमी एक सोशल इंस्टीट्यूट हो गया, देन मैरिज इज योर वन ऑफ द, रिलीजन इज वन सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इन पे सारे डिस्कशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन पे अगर सवाल होगा तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ऑल दस इंस्टीट्यूशन। ओके, सो ये मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आपको फ्रेमवर्क यूज करने से आएगा। लेक्चर्स में मैं सारे ये फ्रेमवर्क डिस्कस करता ही हूँ। ओके, देन अगेन आपको केस स्टडीज और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको वो गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था, राइट। तो आपको केस स्टडीज और एग्जाम्पल के तौर पे आपका पॉइंट प्रूव करना ज़रूरी होगा। डू नॉट, देन ओनली यू विल गेट दैट हाफ मार्क और 1 मार्क एक्स्ट्रा, अदरवाइज यू विल बी ऑन अ एवरेज लाइन। ओके, देन जैसे कि मैंने कहा कि आंसर स्ट्रक्चरिंग अंडर प्रेशर दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्विक स्ट्रक्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, सो you can build the theme wise notes. Okay, I usually give my students the theme wise notes according to the syllabus, तो वो बस वो theme wise notes, and I prefer giving the notes in a limited time span, यानी 50 to 80 pages में ही आपकी सारी सोसाइटी की नोट्स हो जानी चाहिए, so it will be better for us to revise it multiple times. okay, तो वो आपको ज़रूरी होगा। then you need to maintain a data and examples as a repository। इंटरडिसिप्लिनरी आंसर के लिए आपको डिकोडेड सिलेबस की कॉपी होना ज़रूरी है, एंड देन यू हैव टू इंटरलिंक इट विथ, सी इंटरलिंकेजेस या फिर इंटरडिसिप्लिनरी आंसर्स के लिए आपको एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। इफ़ यू कैन रिमेंबर द सिलेबस ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो 10 पॉइंटर्स हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम फीचर्स टू लेट्स से सोशल एम्पावरमेंट, यहाँ तक जितने भी टॉपिक्स है, बस आपको सिलेबस भी याद होगा तो वो आपके 10 पॉइंटर्स हर क्वेश्चन में आपका काम करेंगे रेडीमेड फ्रेमवर्क की तरह, और आपको आपका आंसर वहाँ पे डेफिनेटली इंटरडिसिप्लिनरी हो सकता है। ओके, देन फोकस ऑन द आंसर स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस वन क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया। सो दिस इज वन ट्रिक फॉर मेकिंग योर आंसर इंटरडिसिप्लिनरी। ओके, तो दिस इज अबाउट ओवरऑल सोशोलॉजी वाला डिस्कशन या फिर इंडियन सोसाइटी वाला डिस्कशन। इफ यू नीड द स्टैटिक नोट्स देन आई एम हैप्पी टू हेल्प यू हियर। ओके, जस्ट डू मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल शेयर यू माई इंडियन सोसाइटी वाला स्टैटिक नोट्स विच आर अपडेटेड, विच हैव the relevant data also and relevant examples and case studies also. Okay, so I'll share you with this, right? Okay, on this note I think this is the ultimate, we can say, overall impression of society wala topic from my side. Okay, we'll be coming up with the more GS wala discussion, first impression और या फिर detailed discussion about अदर टॉपिक्स ऑल्सो, इकोनॉमी या हो या फिर GS3 वाला डिस्कशन हो। ओके, ठीक है। सो ऑन दिस नोट पर्टिकुलरली आई टेक अ लीव फॉर यू राइट नाउ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट इन द नेक्स्ट वन।